Good morning. My name is Dr. R.K. Agarwal. Today we will see Chapter 2 Relation and Functions Miscellaneous Exercise. There are 12 questions, so we will go one by one. Let us start with question number 1. The relation is defined by fx, x square, 0 is smaller or equal to x, and x is smaller or equal to 3. And 3x, 3 is equal to or is smaller than x, and x is equal to or is smaller than 10. And similarly, gx is x square, 0 is smaller than or equal to x, and x is equal to or is smaller than 2. And 3x, another function, is 2 is smaller than or equal to x is smaller than 10. Now, so that fx is a function and gx is not a function. हमें ये दिखाना है कि fx फंक्शन है और gx फंक्शन नहीं है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखिए, एक वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर such that 0 is equal to or is smaller than x is equal to or is smaller than 3. And second value दिया है 3x 3 equal to or is smaller than x or equal to or is smaller than 10. Now with this we are to say whether this is a function or not function. फंक्शन होने के लिए क्या होगा? सेम वैल्यू रखने से हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए. जैसे 3 है इसमें और इसमें भी 3 है, तो हम दोनों इक्वेशन में 3 रख के देखेंगे y की वैल्यू. यदि y की वैल्यू सेम आती है तो वो फंक्शन होगा. अभी देखिए, fx is equal to x square, so y is equal to x square and x की वैल्यू 3 रखते हैं, is equal to 3 square. तो this works out to be 9. और दूसरे में y2 is equal to 3x and x की वैल्यू है अगेन 3 है, तो 3 into 3 is equal to 9. तो जहां y1 y2 दोनों सेम है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो एरो डायग्राम में देखेंगे तो एक का एक ही इमेज है. देयर आर नो 2 इमेजेस. सो इससे 3 का इमेज 9 ही है और 9 के सिवा दूसरा नहीं है. तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये फंक्शन है. दूसरा वाला देखें, gx इज इक्वल टू gx is equal to x square 0 smaller or equal to x or smaller or equal to 2, and 3x is smaller or equal to 2 and smaller or equal to 10. This is the function given. Now if we put 2 value, 2 is common in both places. We put the value of x at 2, so y1 will be x square is equal to 2 square is equal to 4, and y2 will be 3 into 2, 3x, and that is equal to 3 into 2 is equal to 6. So आप देखें y1 y2 दोनों बराबर नहीं है. इससे पता चलता है कि ये हमारा फंक्शन नहीं. If fx is equal to x square, find f1.1 minus f1 divided by 1.1 minus 1. तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू रखनी है. f1.1 1.1 square minus 1 square divided by 1.1
-1। अभी इसको आप करेंगे तो 1.21 -1 divided by 1.1 -1. This works out to be 0.21 divided by 5.1, and that happens to be 2.1. This is how we have solved this very simple question, and which you can see the easiness of question. Now coming to question number 3, find domain of fx x square plus 2x plus 1 x square minus 8x plus 12. तो हमें इसका डोमेन निकालना है। हम इस क्वेश्चन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये एनडी है, एनडी नॉन डिटेक्टेबल। सो एफ एक्स की वैल्यू हमें कुछ भी होना है तो ये नीचे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी इसको, लेकिन ये अपने को फॉर्मूला में हमने अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जिसको रखने से डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 is equal to 0. Therefore, x minus 6 and x minus 2 is equal to 0. So, x is equal to 6 or x is equal to 2. यदि x की वैल्यू 2 होगी, 6 होगी, तभी डिनोमिनेटर 0 होगा, और 0 होने से ये ND हो जाएगा। P by Q में Q should not be 0, otherwise this value is not detectable. So हम ये देखें, ये x डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू, तो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 2 and 6। माने डोमेन में 2 and 6, रियल नंबर में 2 and 6 नहीं होगा, और तो ये हमें इक्वेशन बराबर ठीक होगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलता है। तो इसलिए डोमेन क्या है, आर रियल नंबर 2 minus 6, 2 and 6 शुड नॉट। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय x minus 1। सो एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी x minus 1 स्क्वायर रूट शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, ये माइनस के बराबर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस। ये माइनस नहीं होने के लिए क्या होगा, x की वैल्यू x minus 1 should be equal to 0 or greater than 0, क्योंकि 1 x minus 1 0 होगा, x 0 होगा, तो x minus 1 0 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, और 2 होगा तो 2 minus 1 स्क्वायर रूट 1 होगा। इस प्रकार आप देखेंगे x minus 1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। सो यदि हम दोनों साइड में 1 को प्लस करें तो क्या होगा, 0 plus 1, ये दोनों कट जाएगा। x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1,
अभी x क्या है, डोमेन है, तो डोमेन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और इंफिनिटी तक जाएगा. सो डोमेन इज इक्वल टू 1 एंड इंफिनिटी. ये 1 इंक्लूसिव है तो क्लोज ब्रैकेट होगा, ये ओपन ब्रैकेट होगा. डोमेन हो गया. अभी इसमें फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन. रेंज भी निकालने के लिए बोलते हैं. तो रेंज के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम एक टेबल बना लें. अभी x की वैल्यू रखते जाएं. x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज 0, देयरफॉर y विल बी 0. देन x की वैल्यू 2 रखें, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो 2 रखने से इसकी वैल्यू 1 आएगी. 3 रखें, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2. देन 5 रखें तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. यदि 10 रखें, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा. इस प्रकार y की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक जाती है. सो इसका रेंज क्या होगा, रेंज विल बी इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड अप टू इंफिनिटी. सो हमने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 4 का अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1. f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1. तो आप मॉडुलस के बारे में जानते हैं, उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट 0 रहेगा तो बाहर आने से प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस होता है. और इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो जाएंगे. और रेंज में क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉडुलस. सो अभी हम इसमें वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 1 विल बी 0 माइनस x एंड y. 0 की रखने से 1 आएगा. देन x की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस 1 इज 0. x की वैल्यू 2 रखें तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. 3 रखें तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो इस प्रकार आप देखें कि y है, y इज ऑल्सो रियल नंबर such that it belongs to 0. 0 is inclusive and up to infinity. So this completes your question number 5. You have found domain and range of question number 5. We will go to question number 6 now. Now we see question number 6, 7 and 8. Question number 6 says, let f is equal to x and second element is x square plus 1 by x square such that x belongs to R. Be function from R to R. Determine the range of f. f का रेंज हमें पता करना है.
रेंज पता करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर divided by 1 plus x square is smaller than 1 as denominator is greater than numerator. डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, इसलिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और इस वजह से इसकी वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1 होगी. दूसरा हम देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो -2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4. तो 4 बाई 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बाई 5. तो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1. सो लाइकवाइज कोई भी वैल्यू रखिए आप, 2 प्लस रखिए तो 2 स्क्वायर is equal to 4, again 1 plus 4, this is 5. So x square 1 plus x square is equal to or greater than 0. So we can infer 0 is smaller than or equal to x square by 1 plus x square and smaller than 1, जो हमें 1 और 2 से मिलता है. तो रेंज क्या होगा, 0 होगा इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल है और 1 एक्सक्लूडेड रहेगा, इसलिए इसका ब्रैकेट ओपन होगा. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एफ और जी, लेट एफ एंड जी आर टू आर बी डिफाइंड बाई रिस्पेक्टिवली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी. तो हमें एफ एक्स का वैल्यू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अभी क्या करना है, f प्लस जी निकालेंगे. f प्लस जी निकालना है तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देना है, तो 3x माइनस 2. दूसरा क्या करना है, f माइनस जी निकालना है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है f माइनस जी में, तो x में माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये प्लस 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा. तो ये देखें x प्लस 1 सब्ट्रैक्शन 2x माइनस 3, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 4. तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस x प्लस 4. और f बाई जी तो बहुत सिंपल है, f बाई जी में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3. इस प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन 7 भी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया. अभी हम क्वेश्चन 8 देखेंगे. क्वेश्चन 8, लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 1 माइनस 1 माइनस 3. देन क्या बोलते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, डिटरमिन ए एंड बी. ए एंड बी निकालने के लिए बोलते हैं, तो हम इसको सबसे सिंपल तरीके से करते हैं. पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है, पहला एलिमेंट है, दूसरा y है. इसकी वैल्यू इस फार्मूला में रखते हैं.
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ एक्स जो y होता है, तो ये y1 लिख दिया। तो y1 में क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखा a प्लस बी। अब दूसरा y2 ले तो y2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब ये दोनों को सॉल्व कर दें, हमें आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करने से बहुत सिंपल होगा, ये b क्रॉस हो जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू -2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, b a की वैल्यू रखें 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। इस प्रकार हम 6, 7 और 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।